diversity in living organisms. In offline classes, we have started this chapter. So, diversity in living organisms. In this chapter, we have completed 7.1. What is the basis of classification? जो क्लासिफिकेशन है वो करने का बेसिस क्या है? सो फर्स्ट थिंग 7.1, what is the basis of classification? So in classification we have seen that there are many types of classification. uh, if you are in standard 9, this is the group of students of standard 9. If you are in 7th standard, this is the group of students of 7. uh, just like this, if there is benches, group of benches and group of tables, so इस तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं. बट इन ह्यूमन बींग्स देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ह्यूमन बींग्स एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंजाई. जिस किसी का भी आवाज आ रहा है प्लीज क्लोज कर दो, इसको म्यूट कर दो. In living things, there are total 5 things are given from R.H. Whittaker and two other scientists also there. Okay, classification. Now, the biologists such as Ernest Haeckel, Robert Whittaker, and Carl Hulse have tried to classify all living organisms into broad categories called kingdoms. सपोज वी हैव गिवन द एग्जांपल्स टू यू कि कोई एक पर्टिकुलर अर्थ है, अर्थ जो है वो एक क्या हुआ, अर्थ के अंदर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं. सपोज फ्रॉम द रीजियन that is India, Australia, England. Okay, we have 7 continents. So suppose things द मोस्ट वास्ट थिंग, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स है हमारे पास, तो कॉन्टिनेंट्स जो है उसको हम बोलेंगे किंगडम्स. तो वैसे ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी कुछ कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जैसे कि इधर आर.एच. व्हिटेकर एंड कार्ल अर्नेस्ट हैकल एंड कार्ल हुल्स, इन तीनों ने हर एक ऑर्गेनिजम्स को कुछ 5 चीज़ों में क्लासीफाई किया हुआ है. तो फर्स्ट थिंग इज मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटेस्टा, then third one is fungus, then fourth is plantae, and last is animalia. Okay. Now first we have seen monera. In monera we have discussed that these organisms do not have a defined nucleus or organelles, nor do any of them show multicellular body design. Now what do you mean by that? These organisms do not have defined nucleus. मतलब कि इनके पास कोई पर्टिकुलर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. जैसे कि ह्यूमन बींग्स का अगर आपने सेल देखा हो या एनिमल सेल, इफ यू हैव सीन that these have a perfect defined nucleus, and organelles like mitochondria, ribosome, etc. Okay, so monera does not have any defined nucleus or organelles. On other hand, they show diversity based on many other characteristics. Some of them have cell walls while some do not. So second point, they have cell wall or they don't have. Okay. Now, in number 3, the mode of nutrition of organisms in the group can be either getting it from the environment. Okay, it will have the heterotrophic nutrition or autotrophic nutrition. So, what do you mean by autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition is the nutrition when they synthesize their own food with the help of sunlight, carbon dioxide, and water. This process is called photosynthesis. Now, in photosynthesis, we have discussed in the lower standard, 7 and 8 standard, what is photosynthesis. Photosynthesis, the green plants consume sunlight, carbon dioxide, and water and make glucose out of this. So, they are called autotrophs, and this nutrition mode is called autotrophic nutrition. In second thing, the human being and the other animals are dependent on some other animal or some food. This is called
heterotropic nutrition. In heterotropic nutrition, the organisms are just a minute. Now, there are two modes of nutrition. First one is autotropic and second one is heterotropic. Autotropic means when a organism synthesize their food by their own, मतलब कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अपना फूड जो है वो खुद से बनाएगा बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, इसके अंदर ज्यादातर जो है वो मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड मे बी पॉसिबल फंगस आ सकता है. बट अभी हम मोनेरा के बारे में डिस्कस. मोनेरा के अंदर कुछ चार एग्जांपल्स दिए हुए थे. नंबर वन इज बैक्टीरिया, सेकंड वन इज ब्लू ग्रीन algae और साइनोबैक्टीरिया एंड लास्ट वन इज माइक्रोप्लाज्मा. ये चार एग्जांपल्स आपको याद रखने. बैक्टीरिया का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है एंड वैसे ही एक एनाबिना करके चीज है जिसको हम मोनेरा के अंदर कंसाइडर करते हैं. चेन लाइक स्ट्रक्चर, बीड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, नाउ सेकंड वन इज प्रोटिस्टा. दिस ग्रुप इंक्लूड्स मेनी काइंड्स ऑफ यूनिसेल्युलर eukaryotic organism. Some of these organisms use appendages such as hair-like cilia or whip-like flagella or moving around. Okay. In Protista, there is always unicellular. Unicellular का मीनिंग क्या होता है कि एक ही सेल है उसकी बॉडी में. अंडरस्टैंड? In multicellular organisms, there are lot of cells, but in unicellular organisms, there is only one cell. But this is a eukaryotic organism. So in eukaryotic organism, there is organelles present like mitochondria, ribosomes, nucleus, other etc. Organelles are present, but in Monera that is absent. Okay, Protista's examples are given: unicellular algae, diatoms and protozoans. ये तीन एग्जाम्पल है. ये तीन एग्जाम्पल याद रखने अपने को फॉर एग्जाम पर्पस. ओके, यहाँ पे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोथ आर प्रेजेंट. नाउ come to fungus. Some fungal species live in permanent naturally. Okay, they are called parasites. Many of them have capacity to become multicellular organisms certain stages of their lives. ये यहाँ से start हो रहा है फंगस. इसके अंदर हमेशा जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है. ओके, दे some of them use decaying organic materials as food and are therefore called saprotrophs. Now what do you mean by decaying organic material? So first of all, decaying का मीन जो होता है जो सड़ने वाली चीजें होती है, जो चीजें सड़ रही है और डाइड है, डेड है, मटेरियल है, उसको हम बोलते हैं decaying organic material. ओके, सच एज फूड, जो फूड जो है वो खराब हो चुका है, वो उसको भी हम बोल सकते हैं डीकेइंग मटेरियल. ओके, सो इस टाइप के जो कोई भी फंगस है वो डिपेंड करती है उसके ऊपर, डीकेइंग मटेरियल के ऊपर, इसलिए उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स. ओके, और इसका जो न्यूट्रिशन है उसको सेप्रोटाइपिक न्यूट्रिशन भी हम बोलते हैं. ओके, others require a living protoplasm of a host organism for food. They are called parasite. Now एक तो सेप्रोट्रोप हो गए जो कि किसके ऊपर, डीकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है. बट सम ऑफ देम आर कॉल्ड पैरासाइट. मतलब कि वो पैरासाइट है, जैसे कि हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करेंगे या कोई पर्टिकुलर थिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे या कोई प्लांट के ऊपर डिपेंड करेंगे फॉर फूड. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैरासाइट. Many of them have the capacity to become multicellular organisms at certain stages in their life. मतलब कि यूनिसेल्युलर नहीं है सिर्फ, उसके साथ साथ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी ये बन सकते हैं. तो यहाँ पे एक कंपेरिजन हो सकता है कि भाई मोनेरा और प्रोटिस्टा दे बोथ आर यूनिसेल्युलर, बट द फंगस इज मे बी पॉसिबल इट कैन बिकम मल्टीसेल्युलर at certain stage of life. They have cell walls made up of tough complex sugar called chitin. Now इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, जैसे कि मोनेरा में भी सेल वॉल थी या तो नहीं थी, बट यहाँ पे इसने बोला है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल जो है वो परफेक्टली
मेड अप होगी किससे? चिटिन से। चिटिन क्या है? तो भाई टफ कॉम्प्लेक्स सुगर है। ओके, एग्जांपल्स आर गिवन यीस्ट, मोल्ड एंड मशरूम। यीस्ट का आप फिगर देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है। देन मोल्ड, मोल्ड के अंदर एक और एग्जांपल जो है वो पेनिसिलियम दिया हुआ है। एंड द लास्ट वन इज एगेडिकस, इसको हम हमारी कॉमन लैंग्वेज में जो है मशरूम बोलते हैं। ओके, Some some fungal species live in permanent, mutually dependent relationships with blue-green algae. Such relationships are called symbiotic. Okay. इसके अंदर बोल रहे हैं कि भाई कुछ जो फंगल स्पीशीज है वो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स में रहती है, जैसे कि ब्लू ग्रीन algae या साइनो बैक्टीरिया। अब ब्लू ग्रीन algae और साइनो बैक्टीरिया जो है वो खुद से खुद का फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसके साथ फंगस जो है वो क्या करती है? रिलेशनशिप में रहती है। और साथ साथ में इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। ये जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक। दिस सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लाइकेंस। ये जो सिम्बायोटिक जो बन रहा है टोटल, जो अदर ऑर्गेनिज्म बनेगा पूरा, इनकी जो कॉलोनी बनेगी उसको हम बोलेंगे लाइकेंस। वी हैव ऑल सीन लाइकेंस एज द स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेस ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज। भाई जो ट्री की बार्क होती है उसके ऊपर छोटे 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 पैचेस देखने को मिलते हैं, वो लाइकेंस के होते हैं। अब लास्ट में दो मेन चैप्टर के जो मेन क्लासेस है, किंगडम्स है, वो है प्लांटे एंड सेकंड वन इज एनिमेलिया। प्लांटे के अंदर क्या होगा कि भाई सीधी सीधी बात है, उसके अंदर ऑटोट्रॉप्स ही होंगे, दिस विच इज आर प्लांट्स। जितने भी टाइप्स के वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर in plantae, and all the other organisms which are called animals are in animalia। सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, बर्ड्स भी एनिमेलिया में ही आएंगे। ओके, अब प्लांटे के जितने भी चीजें हैं, मतलब कि प्लांट्स हैं या कोई भी क्लासेस है, किंगडम्स है, उसके अंदर सबके सब जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स है। मतलब क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर प्लांट जो है वो एक से ज्यादा सेल का बना हुआ होता है। वैसे ही दे आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मीनिंग पता ही आपको। देन दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, मतलब कि जो कोई भी सेल है उसके अंदर every organelle which is of autotrophs are present in it। ओके, यहाँ पे एक पूरा क्लासिफिकेशन टेबल दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऊपर बताया हुआ है, फिर यहाँ पे दो टाइप से क्लासिफिकेशन है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स जो है वो हमेशा क्या होंगे? यूनिसेल्यूलर होंगे और मोनेरा में आएंगे, बरोबर। इसका एग्जांपल है मोनेरा। नाउ यूकैरियोट्स मीनिंग, यूकैरियोट्स का मीनिंग होता है कि उसके अंदर पर्टिकुलरली ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट्स है। अब प्रेजेंट यूकैरियोट्स के बाद भी यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, मतलब कि एक सेल बॉडी भी हो सकती है, और दो सेल मतलब कि दो या तीन ज्यादा उससे ज्यादा भी सेल वाली बॉडी हो सकती है, उसको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। अब यूनिसेल्यूलर में सिर्फ एक ही किंगडम आता है जिसका नाम है प्रोटिस्टा। अब मल्टी सेल्यूलर के अंदर फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। तो भाई विदाउट सेल वॉल में सिर्फ एनिमेलिया ही है, मतलब कि जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स है, उनका जो सेल है वो विदाउट सेल वॉल वाला होता है। ओके, और विद सेल वॉल के अंदर जो दो तरीके के लोग हैं, एक है फंजाई और एक है प्लांटे। मतलब कि फंगस जो है हमने देखा कि उसके अंदर वो क्या नहीं कर सकती है, अपना खाना खुद से नहीं बना सकती है। ही कांट प्रिपेयर फूड बाय देयर ओन, सो इट कांट परफॉर्म photosynthesis, but plantae are always perform photosynthesis and make their own food। ओके,